Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with Think New Syllabus, chapter number 1. And the question is from exercise 1A. Today, I'm going to share with you the question number 6, which is a bit tricky one, but let's find out its easy solution. Cheryl uses 273 1 centimeter cubes to make a cuboid. Each side of the cuboid is longer than 1 centimeter. Find the dimensions of the cuboid. Let us first comprehend what the question says. For example, I have a cuboid. Let's draw a cuboid over here. What is a cuboid? Cuboid is a three-dimensional shape where the length, breadth, or height are not the same. Okay? You have to keep this in mind. So this is a cuboid. And let's say its length is equals to 4 centimeters. Its breadth is equals to 2 centimeters. And its height is equals to 3 centimeters. So all the dimensions means length, breadth, and height. These sides of a cuboid or a cube are called its dimensions. Length by breadth are these two dimensions, and length into breadth into height are the three dimensions. That is the three different sides, okay, in different directions. So if I'm saying length is equals to 4 centimeters, breadth is equals to 2 centimeters, height is equals to 3 centimeters. These are the three dimensions of a cuboid. And if they're saying each side of the cuboid is longer than 1 centimeter, this condition is also satisfied in this very cuboid. Then all the sides are more than 1 centimeters. Let us now divide it into equal cubes, okay? So let's make So this is how our cuboid is made. So you see, we have four cubes in the length, 2 cubes in the breadth, and 3 cubes in the height. This is how this cuboid is made. Each cube has the dimensions of 1 centimeter each. Okay? Each cube is made up of 1 centimeter. So you see, this cuboid is made of these cubes. Okay, where each cube is 1 into 1 into 1 centimeters. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है उसमें 4 क्यूब्स हैं, ब्रेथ के अंदर 2 क्यूब्स हैं और हाइट के अंदर 3 क्यूब्स हैं. ठीक है, एंड इट मेक्स अ टोटल ऑफ 4 into 2 into 3. That is a total of 24 centimeter cube. That is, there are a total of 24 cubes in this cuboid. And this is what the question is all about. So basically, they're asking us, Cherry uses 273 1 centimeter cubes to make a cuboid. They are telling us this figure, okay? And they are asking us to find out these figures, that is these dimensions, length, breadth and height. ठीक है, so basically the question is reversed. यहाँ पर हमें इन्होंने डायमेंशंस को छोड़कर जो टोटल है वो बता दिया. ठीक है, कि चैरल ने एक क्यूबॉइड बनाया विद द हेल्प ऑफ 273 1 centimeter क्यूब्स.
Basically 273 cubes she has used and all the cubes are of 1 centimeter each. ठीक है, टोटल जैसे हमने इस क्यूबॉइड के अंदर 24 क्यूब्स यूज किए having each cube of 1 centimeter, इसी तरह से चैरल ने 273 क्यूब्स यूज किए हैं और उसके अंदर उसकी जो डायमेंशंस है यानी लेंथ में उसने कितने क्यूब्स लगाए, ब्रेथ में उसने कितने क्यूब्स लगाए और हाइट में उसने कितने क्यूब्स लगाए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. So the simple rule to find these cubes is to find the prime factors of 273. Simple आपने क्या करना है, 273 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने. क्योंकि देखो 24 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 3. अच्छा, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4/2/3 के अंदर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो वी कैन कट इट डाउन इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें 24 की, तो 24 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3. देयर आर 3 twos and a 3 in the प्रोडक्ट ऑफ 24. बट 273 के भी हमने इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं एंड वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि वी हैव टू पुट ईच ऑफ द डायमेंशंस मोर देन 1 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने. सिंस इट्स नॉट एन इवन नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता. सो वी हैव टू ट्राई इट डिवाइडिंग इट बाय 3. 3 से इसको डिवाइड करके देखें तो 2 + 7 + 3. We have already learned the divisibility rule of 3, which says just sum up all the digits, and if the sum is equals to if the sum is a multiple of 3, then the given number is also a multiple of 3. Okay, so it's 12. 3 could divide 273. 3 9s are 27, 3 1s are 3. Now we have 91. And if you know, 91 is only divisible by 7. 7 1s are 7. 21 is the remainder. 7 3s are 21. So 91 is a product of 7 and 13. So the next factor would be 7. And the last one is 13. So basically in this question, we have a total of 3 factors. Okay? And all 3 are prime numbers. Okay? So we can write it down as 273 is the product of 3 into 7 into 13. Basically, we have showed this 273 as a product of its prime factors. And if we just go to the question back, what we did when we were calculating the dimensions of the cube that we shared earlier. So the 3 dimensions were giving us the product of 24. So similarly, if we have 3 dimensions in the product of 273, so it means we can take one as a length, the other as a breadth, and the third one as the height. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ब्लेसिंग है कि हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो सिर्फ 3 ही हैं. ठीक है, all are more than 1 centimeter, so all the dimensions would be longer than 1 centimeter. और इसके अंदर हमारे पास अगर 4 फैक्टर्स आ जाते तो वी कुड सिंपली मल्टीप्लाई 2 ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं किसी एक नंबर के फैक्टर्स निकालूं यहाँ पर और वो 2 3 5 7 4 फैक्टर्स आ जाएंगे और डायमेंशन निकालने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, कोई से भी 2 फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरी डायमेंशन जो है आराम से हो जाएंगे. 2 3s are 6, एक डायमेंशन 6, दूसरी 5 और तीसरी 7. So this is how we have to do these type of questions. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जितने उसने क्यूब्स यूज किए थे उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए और जब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए तो वी जस्ट चेक इट के हाउ मेनी फैक्टर्स डू वी हैव सिंपली 3 फैक्टर्स एंड द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 3. तो हमने सिंपली एक एक डायमेंशन को एक एक नंबर अलॉट कर दिया. ठीक है, now, dear students, I have made this figure for you for a better understanding. You can check this out that I have a length of 13 cubes. Each cube having 1 centimeter gives us a 13 centimeter, right?
and a breadth of 3 cubes, meaning 3 centimeters, and a height of 7 cubes, giving us 7 centimeters. And if you look for the front face, you will find that 7 into 13 is equals to 91. Similarly, in the middle face, we have again a total of 91, and in the last face, we have also 91. There are a total of 3 faces ना, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास 91 into 3, आंसर 273 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पर हमारे पास तीनों डायमेंशंस मोर देन 1 सेंटीमीटर हैं और सारे टोटल क्यूब्स मिलकर 273 क्यूब्स बन रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये एक क्यूबॉइड है दैट इज मेड अप ऑफ 273 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। ईच each side of the cube is longer than 1 centimeter, and we have found all the dimensions of the cuboid. Now let's move to question number 11, which is of the same sort. यहाँ पर भी हमसे कह रहे हैं Ali wants to use 210 1 centimeter cubes. This time we have 210 cubes, each with 1 centimeter, makes a cuboid such that each of its side is longer than 1 centimeter. Same condition, that each of the dimension is more than 1 centimeter. There are 6 possible cuboids that can he make. Find the dimensions of any 3 of them. ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर मोर देन 3 फैक्टर्स आएंगे, तभी यहाँ पर हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट 3 पॉसिबल cuboids out of the 6. ठीक है, तो सेम हमने सबसे पहले क्या करना है, we have to find the prime factors of 210 and let's find out how many factors we can get out of 210. It's an even number, so we are going to start dividing it with 2. 2 ones are 2. Now we have to divide 2 digits at a time, so we will put a 0 over here. 2 5s are 10. This is the rule of divisibility. Okay, next we have uh, an odd number, so we cannot divide it with 2. We can divide it with 3 because 1 plus 5 is equals to 6, which is divisible by 3. So 3 3s are 9, 1 is carried forward, 15, 3 5s are 15. Now we have 35, which is only divisible by 5 and 7 because it's a product of 5 into 7. So we have a total of 4 prime factors for 210. It means we can simply turn them into 3 by multiplying 2 into 3, and it gives us a product of 6 into 5 into 7. Similarly, we can multiply 2 by 5 to make it a 10, and then multiply by 3 and 7. Similarly, we can multiply 2 by 7 to make it 14 into 3 into 5. So these are the first 3 possibilities that could be made out of 6. Okay. Similarly, we could have 3 more dimensions. If we multiply 3 by 5 and 3 by 7, 3 5s are 15 into 2 into 7. And next we are going to multiply 3 by 7. 3 7s are 21 into 2 into 5. Okay. And next we are going to multiply 5 by 7. 5 7s are 35 into 2 into 3. So these are the 6 possibilities that we could make different cuboids out of these 210 cubes. ठीक है, अगर हमारे पास 210 cubes है तो उसकी मदद से हम ये different dimensions के 6 different cuboids बना सकते हैं. There are 6 possible cuboids. हमने सारी 6 possibilities यहाँ पर find out कर ली. All we did was we just multiplied 2 of the factors in different positions. ठीक है, पहले हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों फैक्टर्स को अलग रखा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3 और 7 को अलग रखा, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके 3 और 5 को अलग रखा. फिर सेम केस हमने 3 के साथ किया. 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके थे, तो 3 को आगे वाले नंबर्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई किया.
3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 2 और 7 को उसके साथ रखा, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 और 5 को उसके साथ रखा, और फिर 5, तो 5 को हम अर्लियर 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर चुके थे इन द केसेस ऑफ 2 एंड 3, तो हमने 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 2 और 3 के साथ उसको रखा। तो इस तरह हमारे पास 3 डायमेंशंस हर क्यूबॉइड की आ गई। सबके सब क्यूबॉइड्स मोर देन सारी सबकी डायमेंशन जो है मोर देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक क्यूबॉइड बनाया है जिसकी लेंथ हमारे पास, ये आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। ब्रेथ में हमारे पास 5 क्यूब्स हैं, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट में हमारे पास 1 2 3 7 है, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव मेड दिस क्यूबॉइड आउट ऑफ 210 क्यूब्स। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 5 are 30, 30 into 7 is equals to 210, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट क्यूबॉइड्स बना सकते हैं जिसमें आप लेंथ 10 सेंटीमीटर की, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की हाइट लेंगे, तब भी आपके पास 3 7 are 21 into 10, 210 क्यूब्स आएंगे। ये 6 केसेस के अंदर सब जगह पर आपके पास 210 सेंटीमीटर क्यूब्स आएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 210 क्यूब्स, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वहां पर आपने सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपने उस क्वेश्चन को, डायमेंशंस को बनाकर उसको सॉल्व कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर्स थे, तो वहां पर हमने सिंपली एक को लेंथ बनाया, एक को ब्रेथ, एक को हाइट। आप किसी को भी लेंथ बना सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास मोर देन 3 फैक्टर्स थे, तो हमने यहाँ पर दो पेयर्स को, एक पेयर को यानी कि 2 फैक्टर्स को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिंगल फैक्टर के अंदर कन्वर्ट किया ताकि हमारे पास 3 डायमेंशन आ सके। तो क्यूबॉइड की बात है, 3 डायमेंशन चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 फैक्टर्स में ही उसको सम अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर 3 फैक्टर्स बन सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर हमें 6 पॉसिबिलिटीज भी बता दी, ठीक है, तो वो हमने पॉसिबिलिटीज पहले यहाँ पर फाइंड आउट की। अब आउट ऑफ दीज 6 पॉसिबिलिटीज you can write any of the three, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में है। दिस टाइम वी हैव 504 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमने यही करना है, सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट दे आर सेइंग द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर्स। अब उसके बाद इन्होंने हमें ये भी बता दिया कि यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे ना, उसके अंदर जो ऊपर का क्यूबॉइड का टॉप है, यानी उसके अंदर जो ऊपर का रेक्टेंगल है, ये जो टॉप है ना उसका, ये इसकी बात हो रही है। ये जो इसका टॉप है, इसका पेरीमीटर हमें बता रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर है उसकी आपके पास, उसका जो पेरीमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि इन चारों को हम प्लस करें, लेंथ को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और ब्रेथ को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। 2 ब्रेथ्स होती हैं इसमें, 2 लेंथ्स होती हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको जो है वो पेरीमीटर पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, वी हैव फाउंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 504 एंड हियर वी हैव अ टोटल ऑफ 6 फैक्टर्स, ठीक है। अर्लियर इन द क्वेश्चंस वी हैड 3 to 4 फैक्टर्स विच वाज इजी टू डील, ठीक है। अब यहाँ पर 6 फैक्टर्स हैं और ऊपर से इन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन फैक्टर्स को हमने किस तरह से पेयरिंग करनी होगी। अभी इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए और पेरीमीटर की तरफ आइए, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं पेरीमीटर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस पेरीमीटर ऑफ द टॉप इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ से वो बनती है। इट मीन्स sum of length and breadth is equals to half of the perimeter। इस चीज को आपने यहां पर समझना। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है और उसका जब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं,
लेंथ फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं, और वंस वी हैव गॉट दी सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, बिकॉज वी हैव 2 लेंथ्स एंड 2 breadths in a rectangle and sum of all the sides of a figure is equals to its perimeter। ठीक है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सारी साइड्स को फिगर के आपने एड अप कर देना। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों को एड अप करते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास 5 + 2 है, तो इसका मेरे पास पेरीमीटर क्या निकलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। अब आप गौर कीजिए, यहां से हमने रिवर्स वर्किंग करनी है। इन्होंने हमें पेरीमीटर बताया हुआ है और हमसे इन्होंने लेंथ एंड ब्रेथ निकालने का कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेरीमीटर इज प्रोवाइडेड, सो वी सिंपली कुड फाइंड द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बाय डिवाइडिंग द पेरीमीटर बाय 2। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर को हाफ कर दें, देखो ये मेरे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर को अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास 7 आ जाएगा। half of perimeter is equals to 7 centimeter and this 7 centimeter belongs to the sum of length and breadth। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स वर्किंग कर ले कि अगर पेरीमीटर प्रोवाइडेड है उसका हाफ कर दे, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ का हमारे पास सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि हम लेंथ प्लस ब्रेथ कैलकुलेट करने के लिए पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, सिंपल। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ क्या है हमारे पास यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है 1 of the length and a breadth is equals to 10 centimeters। तो we have to make pairs of the given factors in such a way that we get a length and a breadth having sum of 10 centimeters। अब यहाँ पर आपको इस तरह से पेयरिंग करनी है कि आपके पास जो लेंथ के डायमेंशन आए और जो ब्रेथ के डायमेंशन आए उसका सम आपके पास 10 सेंटीमीटर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 10 को जो है वो कट डाउन करना चाहूँ तो किस किस में कट कर सकती हूँ, 1 + 9, ठीक है, उसके बाद 2 + 8, फिर 3 + 7, और फिर हम कर सकते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल 4 + 6, 5 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर के साथ ब्रेथ 9 सेंटीमीटर हो सकती है, लेंथ 2 सेंटीमीटर के साथ ब्रेथ 8 सेंटीमीटर की हो सकती है, लेंथ 3 सेंटीमीटर के साथ ब्रेथ 7 सेंटीमीटर की हो सकती है। इस तरह इन दोनों का जो सम होगा वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और इनके जो पेरीमीटर निकलेगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट होना चाहिए 504 के किसी दो फैक्टर्स के साथ। तो अगर मैं 1 और 9 की बात करूं तो ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा था, ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर 2 + 8 के अंदर हमें लेंथ या ब्रेथ को 2 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, जबकि इन्होंने हमसे कहा ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर्स। तो ये दो कंडीशन तो हमारी यहाँ पर फेल हो गई। 3 + 7 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 3 और 7 हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स मौजूद हैं, और बाकी जो फैक्टर्स होंगे हम इनको मल्टीप्लाई करके हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद 4 and 6 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हम इनको भी दो फैक्टर्स कर सकते हैं, और 3 × 7 जो हमारे पास दो फैक्टर्स बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन 5 + 5 यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज नन ऑफ द फैक्टर इज 5 ओवर हियर। तो वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, 3 and 7, 4 and 6। तो यहाँ पर हम दो तरह के क्यूबॉइड्स बना सकते हैं। इन्होंने हमसे कहा फाइंड अ पॉसिबल हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, वी हैव फाउंड आउट 2 पॉसिबल हाइट्स ऑफ द क्यूबॉइड हियर। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, नाउ वी विल एक्सप्रेस 10 एज अ सम ऑफ टू नंबर्स सच दैट द टू नंबर्स आर बोथ द फैक्टर्स ऑफ 204। इस कंडीशन को हमने पूरा करना है, तो हम यहाँ पर 10 को दो नंबर्स में तोड़ेंगे, ठीक है, एज एंड वी विल एक्सप्रेस इट एज अ सम। ठीक है, तो 10 को हमने सम में तोड़ना है ताकि हमारे पास दो डायमेंशन आ सके, और वो इस कंडीशन को मीट करें कि वो दोनों हमारे पास 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर भी हो और वो 204 का फैक्टर भी हो। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर्स।
अब यहाँ पर हमारे पास 1+9 के अंदर 1 और 2+8 के अंदर 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर से कम है, तो ये दोनों केसेस हमारे पास पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 3+7 और 4+6 दोनों पॉसिबल है, क्योंकि 3 और 7, 4 और 6 ये चारों नंबर्स हमारे पास 2 से लॉन्गर भी हैं, 2 से ग्रेटर भी हैं, ठीक है। और प्लस ये कि 3 और 7 इन द फर्स्ट केस, 4 and 6 in the second case are both the factors of given number that is 204, ठीक है। और लास्ट केस भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास 204 के फैक्टर्स में 5 मौजूद नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 204। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चल चुकी है कि लेंथ या ब्रेथ हमारे पास उसके डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी हाइट फाइंड आउट करेंगे। Next, we are going to sum up our answer. तो हम यहाँ पे लिखेंगे if we'll take 3 and 7 as length and breadth, then height is equals to 2 into 2 into 2 into 3. That is the remaining factors of 504. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 504, ठीक है। अब इसके अंदर सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नन ऑफ द फैक्टर इज 2 सेंटीमीटर्स और लेस देन 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर से लॉन्गर है, इनका प्रोडक्ट 504 आ रहा है, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 504 क्यूब्स। प्लस ये कि हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स जो है वो ऐसे हैं 3+7, कि जब हम उनको पेरीमीटर में लेंथ और ब्रेथ की जगह पर रखते हैं तो हमारे पास उसका जो पेरीमीटर आता है वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का भी आ जाता है। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर है इफ विल टेक 4 and 6 एज लेंथ एंड ब्रेथ, देन दी हाइट इज इक्वल टू द रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ 504, दैट इज 3 and 7। वहां पर हमारे पास 500 के जो फैक्टर्स थे उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके हमने यहाँ पर इसको 6 कर दिया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमने इसको 4 कर दिया। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर अगर लेंथ और ब्रेथ में आ गए तो बाकी सिर्फ दो फैक्टर्स बचे, दैट इज 3 into 7। इसको हमने मल्टीप्लाई करके हाइट बना दिया, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो अगेन विल गेट 504 विच इज द टोटल दैट इज प्रोवाइडेड टू अस। इसके अंदर भी कंडीशन सारी मीट हो रही है कि हमारे पास नन ऑफ द फैक्टर इज 2 सेंटीमीटर बट ऑल आर लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।